A very good morning to you all, dear students. Right now, we are here with you to make you understand the last part of admission of a partner, that is hidden goodwill. You can see very well on the screen the last topic of the goodwill concepts, that is hidden goodwill. Right. So, to understand hidden goodwill, first you need to understand what is the meaning of hidden goodwill and how to calculate it. So, if I talk about hidden goodwill, children, it is so simple to understand. First, you have to remember the formula, and after that, you have to solve the questions and pass the entries. Goodwill hidden, goodwill of the firm. Formula लगाइए and get the answer. What is the formula? Kindly note down in your register. Total capital of the new firm. Total capital of the new firm minus adjusted capital of the new firm. That's all. Adjusted capital of the new firm. अगर आपको ये दो वर्ड्स याद रहेंगे तो आपका हिडन गुडविल का क्वेश्चन फुल मार्क्स आपको दिला के जाएगा एग्जाम में. The difference between total capital and adjusted capital is said to be the goodwill of the firm. So total capital of the firm कैसे निकालते हैं? How to calculate total capital of the new firm? Kindly write down the steps of calculating total capital of the firm. Very simple. जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आए हैं, क्वेश्चन में हमारे को देखा होगा कि न्यू पार्टनर ब्रॉट दिस मच ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स टू हिज और हर शेयर इन प्रॉफिट्स, राइट? सो इन दिस concept when we do this total capital, his share of profit in the business, this you have to maintain equals to this, you'll get the total capital and accordingly you will get the adjusted capital. इन दोनों का डिफरेंस गुडविल फॉर्म की हमें फाइंड करने में हेल्प करता है. सो एडजस्टेड कैपिटल किसे कहेंगे आप? द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, नंबर वन, जो पहले से पार्टनर्स हैं, प्लस ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू रिजर्व्स, जो चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आइटम्स हम ऐड करते हैं, जैसे रिजर्व है, जैसे रिवैल्यूएशन का गेन है, जैसे हमारा प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन है. तो ये सब चीजें हम इसमें ऐड कर देंगे. और लेस करने वाले आइटम्स कौन से हो सकते हैं? गुडविल रिटर्न ऑफ, और लेस करने वाला हो सकता है गुडविल विड्रॉन. तो नॉर्मली हम लोग ये सब चीजें ऐड करके इसमें से लेस करके देन हम ऐड कर देते हैं कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, क्योंकि वो बोल रहा है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म. न्यू फर्म मीन्स न्यू पार्टनर भी इसमें इंक्लूडेड होगा, प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर. तो यानी कि जो भी इसमें टेक्निकलिटी है वो एडजस्टेड कैपिटल को समझने की है. तो कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स प्लस रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बाय देम, एनी गेन एंजॉयड बाय देम ऑन रिवैल्यूएशन, एंड कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर. तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल प्लस यानी कि रिजर्व्स एंड अदर एडजस्टमेंट्स. बस यू डू दिस एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर. अब हमें पता कैसे चलेगा कि पेपर में हिडन गुडविल का क्वेश्चन आ गया है? Students, please mark it very important to understand that how to judge that there is a question of hidden goodwill in the examination, children. That is the most important thing to be understood by all of you, because जो exercise अब हम ये करने जा रहे हैं, in this exercise we are going to understand how do we judge that there is a question of hidden goodwill in the examination, number one. Number two, what are the journal entries related to hidden goodwill? And next thing is which kind of accounts are opened when there is a case of hidden goodwill, how to identify and how to pass the entries of hidden goodwill. So to understand it better, let us start with the question number 35. A and B are partners. हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है 60 and 1,20,000.
Simple. They decide to admit C into the partnership for 1/4 share in profits. C को admit करते हैं 1/4 share के लिए. C is required to bring 70,000 as his capital. तो सर इस क्वेश्चन में तो सिर्फ कैपिटल कैपिटल और कैपिटल ही दे रखी है and nothing else. Of course students, this is what is supposed to be checked. न्यू पार्टनर की भी कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स की भी कैपिटल, लेकिन सर पूछ क्या रहा है आपसे? गुडविल. तो दिस इज व्हाई इट इज अ केस ऑफ हिडन गुडविल. जब कैपिटल की बेस पर when on the basis of capital the goodwill of the firm is calculated, it is a case of hidden goodwill. When goodwill is to be calculated for the entire firm on the basis of capitals. तो सिर्फ जब कैपिटल ही कैपिटल दे रखी हो, गुडविल के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो क्वेश्चन के अंदर, तो समझ लीजिएगा वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड आया है एग्जाम में? हिडन गुडविल. तो एक बार हम देख लेते हैं जो फॉर्मूला हमने लिखा था उसकी क्या इम्प्लीकेशन है, क्या हाउ टू अप्लाई दैट फॉर्मूला, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. हमने आपको बताया कि ए और बी पार्टनर्स हैं जिनकी रेशो दे रखी है, आपको रेशो गिवन ही नहीं है, इक्वल माने जाएंगे. 60 एंड 1,20,000 कैपिटल. तो सर एग्जाम में आपको अगर आप देखो तो कैपिटल्स दे रखी हैं आपको ए और बी की. Capitals of A and B are given in the question, which is 1,20,000 and 60. तो 60 थी A की और 120 थी B की. That means 1,80,000 थी. इन्होंने C को एडमिट किया और C जो बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, he is also bringing capital. प्रीमियम फॉर गुडविल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 70,000 गुडविल कैपिटल ये लेकर आ रहे हैं. तो कैपिटल ए की, बी की और सी की दे रखी है. एंड व्हाट एल्स? नथिंग एल्स. गुडविल के लिए आपसे बोल रहा है कि गुडविल की एंट्री करके बताओ या गुडविल निकालो फॉर्म की. तो आप देखते ही समझ जाओगे कि दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ हिडन गुडविल. ये क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं आपको 35th, इट कैन बी देयर एज ए वन मार्कर. आपको 4 ऑप्शन निकाल के देगा, बताओ विच इज द करेक्ट अमाउंट ऑफ गुडविल. तो आप अपना वही फॉर्मूला लगाओगे, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, which I have just written in the beginning. Total capital of the new firm, you will write down children, and you will subtract what? Adjusted capital of the new firm. Adjusted capital of the new firm. These two things you have to calculate and you are through with your question. That's all. तो न्यू पार्टनर कैपिटल, हाँ सॉरी, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना है. तो जो न्यू पार्टनर कैपिटल है और जो उसका शेयर है 1/4, इन दोनों को आप रेसिप्रोकल ले लें और बताएं कि कितना आपका अमाउंट आ रहा है. सर इट्स सो सिंपल. टोटल कैपिटल इज कमिंग हाउ मच चिल्ड्रन? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, क्योंकि 1 किसका शेयर होता है? पूरी फर्म का. तो 1 इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 70 इंटू 4. तो 70 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ कितना आएगा रेसिप्रोकल इसका? 2,80,000 रुपीज. दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म. पूरी फर्म की कैपिटल है ये, ए बी एंड सी की मिलाकर. और एडजस्टेड कैपिटल के बारे में हमने क्या समझाया आपको कि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल ले लो आप, विच इज 60 एंड 120, और न्यू पार्टनर की कैपिटल इसमें ऐड करो. डन. दैट इज 70. और अगर कोई एडजस्टमेंट है तो वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं. इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी सर, सिंपल. तो 120 प्लस 60 180 एंड 70 2,50,000. तो आपके पास जो फर्म की कैपिटल होनी चाहिए थी एज पर द न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड इट्स शेयर इज 2,80,000, जबकि रियल में जो कैपिटल एग्जिस्ट कर रही है वो कितनी है? 2,50,000. तो चिल्ड्रन, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, टोटल एंड एडजस्टेड, इज व्हाट? एब्सोल्युटली राइट, वेल सेड, गुडविल ऑफ द न्यू फर्म. हम न्यू फर्म की गुडविल निकाल चुके हैं. आई थिंक easiest, even a class 6th 7th और 5th 6th child can solve it and understand it. इतना आसान मुझे ये लगता है कि शायद हर स्टूडेंट के फुल मार्क्स आने चाहिए. इसीलिए बोर्ड ने आज की तारीख में इसको 1 मार्कर बना दिया है. एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, सो वेरी सिंपल, राइट. और इसी में आप लोग जो है रिवाइज भी नहीं करते और एग्जाम में रॉन्ग करके आते हो. जस्ट थिंक ओवर इट. तो 35th क्वेश्चन was a very easy question जहां हमें सिर्फ गुडविल निकाल के बतानी थी. 37 देखते हैं. अनिल सुनील आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट with fixed capitals of 3,20,000 and 2,40,000. सबसे बड़ी बात यहाँ पर फिक्स कैपिटल दे रखी है.
तो जब भी कभी कैपिटल फिक्स होगी तो एंट्री हमेशा करंट अकाउंट से होती है, अगर करने को आएगी तो। अच्छा, they admitted Charu as a partner for 1/4 share, who brings how much? 3,20,000 as a share of capital. कैपिटल लेकर आए हैं पार्टनर 3,20,000 का, 320 और 240 वो दे रखा है। कैलकुलेट गुडविल एंड गिव जर्नल एंट्रीज। चिल्ड्रन, न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग ओनली कैपिटल कैपिटल कैपिटल, और एंट्री करनी है गुडविल की। ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। अब आप लोग फॉर्मूला आप लोगों को पता है, आई डोंट नीड टू राइट। तो बस 2 ही स्टेप में आपका ये आ जाता है। स्टेप 1, दैट इज टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे बच्चे? द न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग हाउ मच? 3,20,000 कैपिटल। फॉर हाउ मच शेयर? फॉर 1/4 शेयर सर। इट इज न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग फॉर 1/4। तो बताइए टोटल कैपिटल कितनी आ गई? 1 इक्वल्स टू हाउ मच? 1 इक्वल्स टू 320 इंटू 4, दैट इज 12,80,000. Is this okay? Then comes the adjusted capital. World's easiest, तीनों की कैपिटल को प्लस कर दो। दिस इज स्टेप 2 एंड थर्ड स्टेप में आंसर। 3 स्टेप में क्वेश्चन होता है जिसमें आप सोचते हैं कि सर हमें दोबारा रिवाइज कराइए, 3 बार कराएं, एंड you just spend your time and energy, which is the simplest. You can solve it on your own without taking help from anybody. 320 कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स दोनों की ऐड कर दो, और कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर भी इसमें आप ऐड कर दो। हैंस यू गेट द एडजस्टेड कैपिटल। क्यों कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल? बिकॉज इट कम्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। अगर कोई एडजस्टमेंट रिजर्व की होती, किसी चीज की होती, तो वी वुड हैव डन इट। 320 प्लस 240 is 580 and 6 lakh, and 320 plus 240 is 5 lakh 60 and 8 lakh 80। तो सर इट इज कमिंग 8 lakh 80। बताइएगा गुडविल कितनी निकल कर आ गई फर्म की? ये गुडविल एक पार्टनर की नहीं होती है, गुडविल ऑफ द फर्म होती है, क्योंकि रिटायरमेंट वाले कंसेप्ट में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकलता है हिडन गुडविल। दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन द सेशंस ऑफ रिटायरमेंट। तो गुडविल फर्म की हमारे पास नाउ इट इज अवेलेबल हाउ मच? 4 lakhs। परफेक्ट। अब वो आपसे एंट्री मांगता है, तो आप एंट्री तो सिंपल बनाएंगे इसकी। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम वाली एंट्री आएगी नहीं, तो कौन सी एंट्री आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू विच पार्टनर इज एडमिटेड? चारू। तो चारूज व्हाट? टेल मी। कैपिटल। यस, पार्टनर इज ब्रिंगिंग ओनली एंड ओनली कैपिटल। कितनी कैपिटल लेकर आए चारू? 3,20,000 बीइंग capital brought in cash. First entry, dear students, like this we will do the entry after doing these small workings. Okay? एंड पार्टनर गुडविल लाए नहीं है क्वेश्चन के अंदर। सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है इसके अंदर, क्योंकि पार्टनर के गुडविल लाने के बारे में बोल नहीं रहे हैं वो आपसे। तो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट अमाउंट चारू इज सपोज टू ब्रिंग? चारू का जो शेयर है गुडविल में पूरी फर्म की, वो कितना आएगा? चारू शेयर ऑफ प्रीमियम। चारू शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि वो नहीं लाए। तो फर्म की गुडविल है 4 लाख, चारू का शेयर है इसमें 1/4। तो हाउ मच इज द गुडविल ऑफ चारू? 1 लाख। ही ब्रॉट और ही फेल टू ब्रिंग अनपेड, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि सर वो गुडविल लाए हैं। दिस इज अनपेड प्रीमियम। और अनपेड के केस में हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? टेल मी क्विकली। यस, चारूज व्हाट अकाउंट? करंट अकाउंट डेबिट। न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन करते हैं। व्हाई? बिकॉज सर ही बिकम्स आर डेटर, एंड डेटर्स आर ऑलवेज डेबिटेड। परफेक्टली थॉट। एंड चारू का करंट अकाउंट से ट्रांसफर होकर आएगा किसके कैपिटल अकाउंट में? अनिल और सुनील। अगर आप कैपिटल अकाउंट लिख दोगे तो आप लोगों के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। व्हाई? बिकॉज कैपिटल फिक्स दे रखी थी, तो चारू और अनिल और सुनील के भी कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा? करंट अकाउंट में। ये आपको पूरे चैप्टर में लर्न करके रखना है कि अगर ओल्ड पार्टनर्स की, यानी कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की जो ये है कैपिटल्स है, अगर वो फिक्स्ड है, तो इट हैज टू बी व्हाट? इट नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इट नीड्स टू बी क्रेडिटेड टू द करंट अकाउंट। कैपिटल फिक्स होने की सिचुएशन में सेक्रीफाइसिंग के भी करंट अकाउंट में जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में रेशो गिवन नहीं है,
So we will assume them as which partners? Equal partners. So we will be dividing it 50-50. Hidden goodwill 4 lakh, कैपिटल लाने की एंट्री और गुडविल ना लाने की एंट्री। तो नहीं लाने की तो कोई एंट्री नहीं होती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हम करते हैं, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड और चार्ज फ्रॉम द न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। व्हाई? बिकॉज कैपिटल्स वर फिक्स्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद हम, which is the question number 37th. 37th question. Now you can see, children, what is there in 37th. Vanshika and Shikha. देखिएगा सिर्फ दो क्वेश्चन आपके और रिमेनिंग है एंड 100% गुडविल, ईच एंड एवरीथिंग इज डन. सो Vanshika and Shikha are partners. Capitals है उनकी 1,80,000. They admitted Nisha as a new partner for 1/4 share of profit. बड़ा ही सिंपल, निशा लेकर आती है 90,000 कैपिटल. निशा अक्वायर करती हैं ये शेयर इक्वली वंशिका और शिखा से. देखिएगा बोर्ड का क्वेश्चन है तो यहाँ रेशो में ट्विस्ट जरूर हो. रेशो इजी दे दे सीबीएसई, दिस इज नॉट पॉसिबल. Sorry, you have to learn ratios very confidently, very, tactful you have to be while understanding the first part of the chapter, that is calculation of new ratio and sacrificing ratio. Board ratio में जरूर कोई ना कोई twist देगा आपको. Calculate the value of the goodwill of the firm. पहले goodwill निकालो, फिर entry करो admission पर. If Nisha did not bring her share of goodwill in cash. कितना clear बोलता है बोर्ड. देखिए लास्ट क्वेश्चन आपने करा, वहां कहीं नहीं लिखा कि he bring or he did not bring, बस ये लिखा था कि चारू इज द पार्टनर. बोर्ड का क्वेश्चन आया तो कितना क्लैरिटी बच्चों को मिला कि यस, द पार्टनर डिड नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश. तो अब हम देख चुके हैं कि 1,80,000 कैपिटल्स थी और सर 90,000 वो क्या लेकर आए? कैपिटल. तो सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल वही है जो हमने अभी करे हैं दोनों क्वेश्चंस. नथिंग स्पेशल, नथिंग न्यू इन दिस, बट यस रेशियो वाला पॉइंट अच्छा लगा मुझे भी काफी. तो मतलब उसमें था निशा अक्वायर्ड हर शेयर इक्वली फ्रॉम वंशिका एंड शिखा. तो इट मींस कि अगर निशा ने शेयर अक्वायर किया है इक्वली, निशा अक्वायर्ड हर शेयर इक्वली, हर शेयर इक्वली. अब वो अगर अपना शेयर इक्वली दोनों से ले रही हैं तो दोनों पार्टनर्स दे रहे हैं. तो अगर दोनों दे रहे हैं अपना अपना शेयर, तो निशिका, वंशिका एंड शिखा जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स थे, उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या हो जाएगी वंशिका एंड शिखा की? देखिएगा 1:1, बिकॉज जो न्यू पार्टनर निशा हैं उन्होंने इक्वली वो शेयर, अपना जो भी उनका शेयर है 1/4, वो उन्होंने इक्वली एक्वायर किया है. तो वंशिका और शिखा का हमारा सैक्रिफाइसिंग निकल कर आ चुका है हमारे पास, जो कि गिवन है क्वेश्चन में, मगर ये हमें अंडरस्टैंड करना होगा. सैक्रिफाइसिंग रेशो, ये बोर्ड का एक छोटा सा ट्विस्ट था इस पेपर में. अब गुडविल कैसे निकालनी सिखाइए आपको, बताइए जल्दी से. टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, यस अब तक तो आपने कैलकुलेट कर लिया होगा. टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, कंप्लीट टर्मिनोलॉजी लिखे. टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? 90,000 कैपिटल पार्टनर लेकर आए हैं. फॉर हाउ मच शेयर चिल्ड्रन? फॉर 1/4 शेयर. सो फर्म की टोटल कैपिटल जो 1 इक्वल्स टू आ रहा है, दैट इज कमिंग 3,60,000. Okay, and then we calculate the adjusted capital. Very simple. The second step, एडजस्टेड कैपिटल में क्या लेते हैं? कैपिटल ऑफ ओल्ड प्लस कैपिटल ऑफ न्यू प्लस कोई एडजस्टमेंट अगर रिजर्व या रिवेल की हुई हो तो वो भी हम ऐड कर देते हैं. तो व्हाट वाज द कैपिटल गिवन इन द क्वेश्चन? तब 37, 1,80,000. तो 1 लाख प्लस 80 प्लस 90. तो यानी कि हमने कैपिटल्स ए की, बी की और लास्ट यानी कि सी, दैट इज द न्यू पार्टनर हु इज ज्वाइनिंग द बिजनेस, निशा. तो टोटल करेंगे एडजस्टेड कैपिटल का 2,70,000. बताएं गुडविल कितनी आ गई फॉर्म की निकल के हमारी? व्हाट इज द गुडविल ऑफ द फॉर्म? यस 3,60,000. यस 2,70,000. वेरी गुड. हाउ मच ऑफ द गुडविल वी आर गेटिंग? 90,000. ओके, अब वो आपसे बोलता है कि जर्नल एंट्री भी करके दिखाएं सर आप इसकी. तो गुडविल तो निकालनी बहुत 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 ईजी है. आई मीन नथिंग इन देयर इन द क्वेश्चन, बट गुडविल की अगर एंट्री करने को पेपर में आ जाती है तो आप बोलेंगे हम सर गुडविल को लाने की एंट्री तो नहीं करेंगे, लेकिन कैपिटल लाने की एंट्री आपने हमें सिखा दी है. तो कैश अकाउंट डेबिट टू
निशा कैपिटल अकाउंट, एब्सोल्युटली राइट। कितना रुपीज? 90। हाउ मच कैपिटल द न्यू पार्टनर हैज ब्रॉट? हाउ मच कैपिटल द न्यू पार्टनर हैज ब्रॉट एज पर द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन? 90,000। आई वाज राइट, बिकॉज 90 इज इक्वल टू 1/4 करके हमने कैपिटल से टोटल कैपिटल निकाली थी। अच्छा, पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाए हैं निशा, तो निशा के कहाँ से चार्ज करेंगे? सर नथिंग टू टेल नाउ, निशा करंट अकाउंट डेबिट, और हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वंशिका कैपिटल अकाउंट एंड शिखा कैपिटल। देखिए नेम भी इतने कंफ्यूजिंग दे रखे हैं कि कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो जाए। वंशिका एंड शिखा कैपिटल, यहाँ पर भी शिखा आ रहा है, यहाँ पर भी शिखा आ रहा है, तो वंशिका एंड शिखा में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 90,000 को। बच्चा इसको ओल्ड रेशो में करना चाहेगा बाय मिस्टेक, विच वाज गिवन इन द क्वेश्चन 1:1, क्योंकि रेशो नहीं थी पार्टनर्स की, तो लेकिन हम कोइंसिडेंटली हमारा वही आ रहा है निकल के यहाँ पर भी, लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशो दैट इज इक्वल, क्योंकि एक्वायर करा था शेयर उसने, तो हम अनपेड गुडविल की एडजस्टमेंट कर चुके हैं। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर अनपेड गुडविल, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर अनपेड गुडविल, अनपेड गुडविल की आपने एडजस्टमेंट कर दी करंट अकाउंट ओपन करके। ओके, अनपेड प्रीमियम फॉर डन, easy. Now the second last question, quickly you understand. X and Y are partners sharing profits, नहीं दे रखा, with capitals of 50 each. 50-50 means 1 lakh. They admit Z as a partner for 1/4 share of profits. Z brings 80,000 as its share of capital. तो Z की कैपिटल दे रखी है 80, इन दोनों की दे रखी है 50-50, 1 लाख 1 लाख 80 हो जाएगी तीनों की कैपिटल। और नई चीज डियर चिल्ड्रन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट व्हाट इज द रूल फॉर क्रेडिट? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो क्रेडिट एक पॉजिटिव आइटम है हमारा, क्रेडिट होना किस चीज का? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये एक आइटम हमें मिल गया इस बार एडजस्टमेंट करने के लिए 40,000 रुपीज का, नॉट अ बिग डील। गिव जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड गुडविल। तो एंट्रीज वगैरह तो करनी आपको आती ही है, नॉट अ बिग डील। 38th क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से सॉल्व करके दिखाओगे आप हमें कि हिडन गुडविल निकालने के लिए कैपिटल कैपिटल दे रखी है, तो हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? टोटल कैपिटल। और टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म कैसे निकलती है? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म, हाउ टू कैलकुलेट चिल्ड्रन? यस, न्यू पार्टनर की कैपिटल जो की है 80,000 और इक्वल्स टू हिज शेयर। What was the share of the new partner, Mr. Z? That is coming for 1/4 share, as we have read. So it is coming 3,20,000 rupees. And then हम निकालेंगे adjusted capital। यहाँ पर एक छोटा सी लर्निंग आपके लिए आ रही है, प्लीज बी अलर्ट। अब तक हम करते थे कि सर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल 50-50 और प्लस 80 करते थे, न्यू पार्टनर की कैपिटल दिस वी यूज टू डू टिल नाउ। ओके, तो हम सोच रहे हैं कि 320 माइनस 1,80,000 कर देंगे तो सर 1,40,000 की गुडविल आ जाएगी, बट दिस इज रॉन्ग। प्लीज रिमेंबर, अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट दे रखा है तो ऐड करेंगे, और यही अगर डेबिट बैलेंस होता तो हम क्या करते? माइनस, यानी कि सारी एडजस्टमेंट हम ऐड ऑन करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस है, इट्स अ गेन, इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू, तो वी विल ऐड। अगर रीवैल का लॉस होता, रिवैल्यूएशन अकाउंट का, तो वो हमने क्या कर दिया होता इसमें से? माइनस। तो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आप बताइए आप मेरे को फटाफट कितनी कैपिटल बनी होगी? 50-50, 1 लाख 1,80,000 एंड 40 220। तो 320 माइनस 220 आप करोगे तो बताओ गुडविल फॉर्म की कितनी आनी चाहिए? 320 माइनस 220, इट इज gonna be 1 लाख रुपीज फर्म की गुडविल। अब हमें मिल चुकी है 1 लाख। इसमें से आप शेयर निकाल सकते हो पार्टनर जी का। व्हाट इज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम विच ही फेल्ड टू ब्रिंग? 1 लाख में से 1/4 विच इज कमिंग टू बी 25,000। इस 25,000 रुपीज के प्रीमियम को हम लोग क्या करेंगे? अकॉर्डिंगली एंट्री बनाएंगे इस अनपेड प्रीमियम से। एंट्री तो आप लोग खुद करके रखो। कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, कितना रुपीज कैपिटल लाया है बताइए? 1 लाख और व्हाट 80,000। तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल कर देते हैं फिर हम आपके लिए, चलिए। कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल
80,000। ओके, सेकेंड एंट्री बोलिए, प्रीमियम फॉर गुडविल टू। करना नहीं चाहिए था मगर मुझे ये एंट्री, क्योंकि आप लोग फिर प्रैक्टिस नहीं करोगे। क्या आएगी नेक्स्ट एंट्री? जेड्स पार्टनर जी के करंट अकाउंट से आप चार्ज करोगे। यस, उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना है अनपेड? 25,000। तो ये 25,000 की गुडविल वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर एक्स एंड वाई इन देयर कैपिटल अकाउंट्स। बिकॉज कैपिटल कहीं भी हमें फिक्स नहीं दे रखी, नहीं तो हम करंट में करते, बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर। एक्स और वाई का हमें रेशो नहीं दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, अज्यूम करेंगे इनको इक्वल पार्टनर। A very simple entry will be passed. And we come to the last question of the session as well as last question of the goodwill. We come to the end. Confirmation, if you watched all the 4 videos, guaranteed you will get full marks in your board examinations. Okay? So please be confident. We are doing the last question from the latest book of TS, that is 39. Asin and Shreyas are partners. They admit Ajay for 1/5 share. यहाँ पर रेशो नहीं लिखा है, तो what ratio shall we assume? 1:1. यहीं से माइंड मेकअप करके चलो। अच्छा, Ajay is bringing 5 lakh capital. The value of the assets 15 lakhs. The value of the outside liabilities 5 lakhs. ये asset liabilities किसकी हैं? आसिन और श्रेयास की। Why sir? Because business belongs to Asin and Shreyas on the day of admission. अजय की एंट्री तो आज हो रही है, बट आसिन श्रेयस ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनकी एसेट्स हैं, उनकी लाइबिलिटीज भी हैं हमारे पास। Give necessary journal entry to record goodwill at the time of Ajay's admission. Also show your workings. AI All India 2013 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में पता नहीं कैसा ट्विस्ट आएगा एग्जाम में। God knows what examiner thinks this year, because जिस ईयर उसने ये सोचा होगा क्वेश्चन नंबर 39 2013 में, तब भी ये क्वेश्चन बच्चों के लिए नया था। लेकिन यू हैव टू बिहेव वेरी इंटेलिजेंट। आप कैसे अटेम्प्ट करोगे एग्जाम में? सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला लिख के दिखाओगे एग्जामिनर को। क्या फॉर्मूला होता है? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म। मैं इसको क्वेश्चन को स्पेशली इतने सिस्टमेटिक तरीके से कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि लास्ट क्वेश्चन आपको कैसे कराया गया था। माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म। ओके, दिस इज हाउ द फॉर्मूला गोज। अब आप स्टेप 1 लोगे। स्टेप 1 में क्या लोगे? स्टेप 1 आप लेंगे टोटल कैपिटल निकालने का। टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी? 5 lakhs न्यू पार्टनर का कैपिटल है, इक्वल्स टू व्हाट इज द शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर अजय? 1/5। सिंपल है, 1 इक्वल्स टू 25 lakhs। वी गॉट द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। हाफ पार्ट सॉल्व हो गया क्वेश्चन का। स्टेप 2, लेट अस कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट, अच्छा हम इसको एक बात आपको मैं और बता दूं, इसको हम कंबाइंड कैपिटल भी कहते हैं। कंबाइंड कैपिटल विच कम्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टेड कैपिटल क्या होती है? न्यू पार्टनर कैपिटल प्लस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, पूरी पार्टनर्स की कैपिटल, क्योंकि न्यू फॉर्म की है। तो सर हमको 5 लाख रुपीज, सॉरी 15 लाख के एसेट्स दे रखे हैं और 5 लाख की क्या दे रखी है? लाइबिलिटीज। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज किस चीज का फॉर्मूला है? ये आप लोग 11th में पढ़कर आए हो। कहाँ? इन द फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इज इक्वल्स टू व्हाट? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्वेश्चन में कैपिटल नहीं गिवन है दोनों, लेकिन एसेट और लायबिलिटीज तो गिवन है ना आपको। तो ये एसेट लायबिलिटीज दोनों की हैं, क्योंकि दोनों का ही बिजनेस था ऑफ आसिन एंड श्रेयस। तो आसिन और श्रेयस की जो कैपिटल निकलेगी वो हमें अलग अलग नहीं दे रखी है, सेपरेटली इट हैज बीन गिवन टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो 15 lakhs माइनस 5 lakh आप कर दोगे, इससे जो कैपिटल निकलेगी आपकी 10 lakhs। दिस विल बी द कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो सर आसिन एंड श्रेयस कैपिटल, ये जो कैपिटल निकली है दिस इज आसिन एंड श्रेयस। दिस इज द कैपिटल ऑफ दीज टू पार्ट। तो दोनों की कैपिटल टुगेदर दे रखी है 10 lakhs और न्यू पार्टनर की कैपिटल दे रखी है 5 लाख। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो विल बी गेटिंग 15 lakhs।
So adjusted capital is 15 lakh and total capital is 25 lakhs. बताइए गुडविल कितनी निकल कर आएगी फर्म की? गुडविल ऑफ द फर्म कितना निकल कर आएगा? 25 lakhs माइनस 15 lakhs, कितना रुपीज आ गया ये? 10 lakhs. अब आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कि which topic you want next, so that I can immediately prepare and provide you the best possible support, whatever is possible at my end. Dear students, kindly check it out. 25 lakhs minus 15 lakh, it is coming 10 lakhs. तो अब हमें एंट्री करने को बोल रहा है वो हमसे। अजय का शेयर भी आप हाथों हाथ निकाल के रखो अपने पास, ताकि एंट्री करने में हमें प्रॉब्लम ना आए। तो 10 लाख में से अजय का शेयर है 1/5, 1/5 का अमाउंट निकल कर आता है 2 lakhs. Hence, children, we got the goodwill of the firm as well as Ajay's share also. तो अजय का जो शेयर है, अब हम कैपिटल लेने की एंट्री करेंगे। क्या एंट्री आती है कैपिटल आने की बिजनेस में? बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल। गुडविल वो लाए नहीं है, क्योंकि हिडन गुडविल का तो कॉन्सेप्ट ही यही है कि पार्टनर गुडविल नहीं लाया। लाता तो फिर आपको दिखाई देती वो गुडविल। तो हाउ मच कैपिटल ही ब्रॉट? 5 lakhs, जिसकी बेस बनाकर हमने क्या निकाला था? फर्म का कैपिटल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अजय के कहां से चार्ज करेंगे अनपेड गुडविल? अजय's current account debited and will transfer Asin capital account, Asin's capital account and to Shreya's capital. ये एक एडजस्टमेंट होती है टेम्परेरी, कि पार्टनर के करंट अकाउंट को ओपन करके और पैसा ट्रांसफर कर दो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट। और गुडविल कितनी निकली थी उनकी? 2 लाख रुपीज अजय की, जो वो नहीं लाए थे। तो सर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली, बिकॉज द रेशो इज नॉट गिवन। Here we come to the end of the entire goodwill concept. Nothing is left to be taught. Only thing which is to be done is your end, that is practice and practice and nothing. Okay, so just practice, and I'm sure you will take these sessions very seriously. You will really work hard and get very good marks in the examination. All the best, students. Goodwill is 100% done. Kindly let me know about the topics where you want the sessions. Thank you.